ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਲਕੇ ਉਠ ਪਪੋਲੀਐ ਵਿਨ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣ। ਬੁੱਝੇ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਝੇ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ। ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਪਪੋਲੀ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਗਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੂਰਖ, ਅਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਸਮਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੂਰਖ ਤੇ ਬੇਸਮਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੱਲਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਨ। ਬੇਬਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੀਆਬਾਨ, ਜੰਗਲ। ਛੁਟੈਗੀ ਭਾਵ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੇ ਆਖਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐਸੇ ਬੀਆਬਾਨ, ਐਸੇ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਲੱਭ ਲੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ,
लगा कित कुफकड़े सब मुकदे चली रहना रहाओ। सतगुरु पातशाह जी आखन कि प्राणी तू आया लाह लैन, कि हे प्राणी तू इस संसार अंदर परमात्मा दे नाम दा लाहा लाभ खटन वास्ते आया, लाहा लैन वास्ते आया। एवें ना तू व्यर्थ दे कमां विच पै। लगा कित कुफकड़े, कि तू किस खुआरी वाले काम विच रुझा पिया है। कुफकड़े तो भाव कि जिहड़ा काम करदियां खुआरी होए, भाव कुफकड़ा कि फाकी मिले, जिन्हों कह दिए कि बस कोई लाभ ना होए, बस खुआरी पैदा होए। कुफकड़े खुआरी वाले काम जिहदे नाल भटकना पैदा होए ते तेरी सारी जिंदगी दी रात जिहड़ी है ये मुकदी जा रही है, खत्म हुंदी जा रही है। सब मुकदी चली रैन, ये जिंदगी दी जिहड़ी रात है ये खत्म हुंदी जा रही है। सहजे है आपां पहलां भी विचार कर चुके हाँ कि रैन शब्द दा अर्थ है रात, ते रात नूं जिंदगी दे वास्ते मनुखा पूरे मनुखा जीवन दे लई सतगुरु जी ने वरतिया गुरबाणी दे अंदर कि ये जिंदगी सिर्फ एक रात वर्गी है। कि समझ लो कि सिर्फ दिन दे ढला नाल जन्म होया है, मनुख दा देही मिली है, ते दिन दे जदों सूरज दिसेगा चढ़ेगा उदों ये देही खत्म है। बस इन्ना ही समा है। ते उहदे विच विच सतगुरु जी आखदे कि तू सौ के टपा देना, भाव विकारां दे विच सौ के तू ये रैन टपा देना। इसे तरह व्यर्थ दे काम ना कर, उस दे मालक दे नाल जुड़। कुदम करे पशु पंखियां दिसै नाही काल, पातशाह जहर कुदम तो भाव कलोल, कि पशु कलोल करता है, पंछी भी कलोल करता है। कुदम करे पश पंखियां, कि पंछी भी जिहड़े वो कलोल करते ने, वो भी कलोल करता है ते पशु भी कलोल करता है। पशु पंछी नूं मौत नहीं दिसदी कदे। पंछी है जां पशु है, उन्होंने अगे मौत दिसदी नहीं हुंदी। उन्होंने ये नहीं पता हुंदा कि ये जो अगे चीज़ पई है जां इहदे नूं मैं छूहण दे नाल जां इहनूं खाण दे नाल मैं मर जावांगा। कदे भी पंछी नूं ये नहीं पता हुंदा कि ये जहर वाली चोग मेरे अगे रखी हुई, जे मैनूं खा लिया तो मर जावांगा। कदे भी नंगी तार है जिहड़ी वो पशु नूं नहीं दिसदी, वो जल्दी दे नाल उहदे विच अपना सिंग फसा लैंदा जाके, जां उहनूं मूँह दे विच फड़। कहण तो भाव है कि उहदे कोल सोझी नहीं है, उहनूं पता नहीं लगदा की है की नहीं। सतगुरु जी फिर इत्थे उदाहरण नाल ही जिहड़ा वो सांझ पा रहे हैं। पंछी भी एवें भावें नंगियां तारां ते बह जांदे ने, पर उन्हां नूं की पता कि जे दूसरी नाल भी टच हो गए तो असीं मर जावांगे, उत्थे लमके रह जाना। कहण तो भाव है कि उन्हां नूं दिसदा नहीं। पर पातशाह जी आख रहे हन कुदम करे पशु पंखियां दिसै नाही काल, उन्हां नूं काल नहीं दिसदा, उन्हां नूं अंत समा पाओ मौत जिहड़ी नहीं दिसदी है। उतै साथ मनुख है फाथा माया जाल, उतै भाव की उसे टोले विच, कि उसे लाइन दे विच पशुआं वाली पंछियां वाली लाइन दे विच ये मनुख भी जा खलोता है, उत्थे खड़ा हो गया है। कि हुण उसे साथ दे विच पशुआं वाले पंछियां वाली साथ दे विच ये भी जा रलिया। पंछियां वांग पशुआं वांग इनू भी मौत नहीं दिसदी, इनू चेता नहीं है कि मौत जिहड़ी आ जानी है। उत्थे साथ मनुख है फाथा माया जाल, ते ये माया दे जाल विच जिहड़ा है फसिया पिया है, फस गया माया दे जाल विच। इनू दिसदा ही नहीं कि अगे जिहड़ी मौत है। मुक्ते सेई भालिए जे सच्चा नाम संभाला, मुक्ते भाव माया के जाल तो मुक्त। कि सतगुरु जी आखन लगे
कि माया दे जाल तो बचे उही बंदे दिसदे हन, उही बंदे जिहड़े वो सामने आउंदे हन, जिहड़े परमात्मा दा सदा कायम रहन वाला नाम है जिहड़ा वो हिरदे दे विच ध्याउंदे हन, वसाउंदे हन। ये सतगुरु पातशाह जी जिहड़ा उस दसना कर रहे हैं इत्थे कि मुक्ते सही वो मुक्ते ने भालियां, उन्हां नूं जीवन की जिहड़ी सोझी आ जाती है, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ फिर दिसदे ने जे सच्चा नाम संभाल, ਜਿਹੜੇ सच्चे नाम नूं हिरदे दे विच संभालदे हन। जो घर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे, कि सतगुरु पातशाह जी हुण बड़े स्पष्ट शब्दां दे विच इस पावन शब्द दे अंदर विचार जिहड़े वो दस रहे ने, बड़े बड़े सीधे शब्दां दे विच, कि जे यही गल किते कोई आम मनुख किसी नूं कह दे ना कि आह गल ऐदां है, ते अगला गुस्सा करके बह जांदा कि नहीं ऐदां आख रहा, मेरे नाल मौत दीयां गल्लां कर रहे हैं। पर गुरु पातशाह जी आखदे ने असल दे विच सच्चाई इहो ही है। इस सच्चाई तो कोई भज नहीं सकता, कोई दूर नहीं जा सकता। इस करके फिर पातशाह जी इत्थे आख रहे हन कि जो घर छड्ड गवावना, कि हे प्राणी जिहड़ा ये घर छड्ड के सदा लई तुर जाना है, तैनूं अपने मन विच प्यारा लग रहा है। प्यारा भाव कि इहदा मोह आ, सो लगा मन माहे, वो घर अपने मन दे विच तू लाई बैठा कि मेरा ही है। भाव कि ये शरीर है जिहड़ा ये घर वर्गा है, ते इहदा तू मोह पाली बैठा है। गुरु दे हुक्म नूं छड्ड के तू व्यर्थ दे कारजां विच लगा होया है। भाव सो लगा मन माहे, ये प्यारा जा जिहड़ा घर है ना तेरा, ये एक दिन छड्ड के तुर जाना है, जाना ही पैना है। जिथै जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे, कि हुण इस घरों जाके, भाव इस घर नूं छड्ड के जदों अगे जाना है, तुरना है, सतगुरु जी आखण लगे फिर जिथे जाए तुद वर्तना, कि जिथे जाके तू वर्तारा करना है, जिथे जाके तेरा वाह पैना है, तिसकी चिंता ना, ओदी तू कोई चिंता ही नहीं कर रहा है। भाव कि अज दे समय जिहड़े कर्म कुमारियां हैं, ये आउण वाले समय दे विच तेरे गल दे विच इन्हां ने संगल बन के पै जाना है। ये तो इत्थों लैणे नहीं कि जैसा बीजे सो लुणा हो जाना, वो तो सच्चाई है कि तिसकी चिंता नहीं, तू आने वाले समय की चिंता नहीं कर रहा है कि अगे जाके तेरा वाह जिथे पैना है उथे फिर की होना है, की तू वरतना है। सतगुरु जी आखन लगे ओदी फिक्र तू बिल्कुल नहीं कर रहा। फाथे सेई निकले जे गुर की पैरी पाहे, पातशाह जी आखन लगे फाथे सही निकले, कि असल विच ते सारे जीव ही जिहड़े वो माया दे विच फसे हुए ने। फाथे फाथे तो भाव फसे हुए ने, सही निकले आखन लगे फिर इस माया दे मोह विचों निकलदे ओही ने जे जिहड़े गुर की पैरी पाहे। पैरी कि गुरु दे चरनां दे विच लगदे ने, जो गुरु दे चरनां विच जुड़दे हन, ओही जिहड़े ने मनुख जीव माया दे मोह तो बाहर निकलदे हन। कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए, कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए। सतगुरु पातशाह जी आखन लगे कि माया दा मोह जिहड़ा बहुत ताकतवर है, बड़ा बलवान है, बड़ा प्रबल है। इस विचों गुरु तो बिना कोई बचा नहीं सकता है, गुरु तो बिना कोई जिहड़ा है वो बाहर नहीं कढ़ सकता। भाव गुरु जिहड़ा है अजिही समर्था वाला है, इस तो बिना होर कोई दिसदा भी नहीं। दूजा को ना दिखाए, दूजा जिहड़ा नजर भी कोई नहीं पैंदा कि जिहड़ा इस माया दे मूँह विचों बाहर कढ़ लेगा। चारे कुंडा भाल कै आए पया शरनाए,
ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੁੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਦਾ ਲਿਆ ਕਢਾਏ। हे नानक आख सच्चे पातशाह ने, गुरु ने मैनू माया दे मोह दे समुंदर विच डुबदे नू जिहड़ा है कढ लिया है, बचा लिया है, उन्हें सहारा दिता है। श्री राग महला पंजवा। घड़ी मोहत का पाहुणा, काज सवारनहार। सतगुरु पातशाह जी हुण बड़ा सोहना उदाहरण दे के समझा रहे ने। घड़ी मोहत का पाहुणा, कि जदों भी कोई घर दे विच प्राहुणा आउंदा है, लंबेरे समय दे बाद कोई प्राहुणा आवे, घड़ियां दो घड़ियां वास्ते, क्योंकि इन्ना क समा हुंदा प्राहुणे वास्ते कि घड़ियां दो घड़ियां वास्ते आया। पातशाह जी उन्हें इसकी उदाहरण दे रहे हैं इत्थे फिर, कि किसी घर घड़ी दो घड़ियां दे लई कोई गया होया जिहड़ा प्राहुणा हुंदा है, ते जे उत्थे जा करके वो काज सवारन लग पे कि उत्थों घर दे जिहड़े है ओ काम कर ला, ओ काम कर ला, बैठे ही ना उत्थे जाके आपदे जिस प्राहुणाचारी रिश्तेदारी दे विच गया होया उत्थे बैठे ही ना, गलबात ही ना करे, ओ काम कर लो कि मैं प्राहुणा आया, मैं तुहाडे काम करना आया, आ भी काम कर लईए, आ काम, कहण तो भाव कि हाल चाल जां जो भी गलबात है वो करे ही ना। ते उत्थे जिहड़ा दो घड़ियां दी लई गया है उत्थे जाके काम करी जाए। सतगुरु जी आखण लगे कि फिर ये जिहड़ा है हासोहीना जगह, हासोहीनी जी गल बन जाती है। उदाहरण लै रहे सतगुरु जी कि हासोहीनी आपे कि लंबे समय बाद आया, क्योंकि अज दे समय दे विच है जिहड़ी प्राहुणचारी है किते ना किते फोन खा भी गया है, इन्हें काफ़ी घटा दिती है। कि पुराने समय दे विच ते बड़ा चाह हुंदा सी कि हाँ जी प्राहुणा आया है। अज दे समय विच कुछ अजिहा हुंदा है कि फोन ते गलबात हुंदी रहिंदी है, ते जदों कोई आ भी जाता है बहुती बार फिर भी फोन च ही वड़िया रहिंदा कि कोई हुण हाल चाल ते गलबात की करिए, सारियां गल्लां ते फोन ते हो गईयां। कहण तो भाव है कि किते ना किते ये जिहड़ी नेड़ता है ये फोन ने जरूर, भावें इहदे लाभ भी बड़े ने पर इहदे हानिकारक प्रभाव ने जिहड़े वो भी बड़े पे है। किने खत्म करता कि बहुती बार मनुख कोल ही बैठा हुंदा है फिर भी फोन ते लग्या हुंदा है। खैर ये एक वखरा विषय है। सतगुरु पातशाह जी आखण लगे ये हासोहीनी जी गल बन जाती है। इसे तरह फिर सतगुरु जी आख रहे हन कि इवें ही ये जीव है जिहड़ा ये इस संसार दे अंदर दो घड़ियां दा प्राहुणा है। दो घड़ियां प्राहुणा भाव उस मालक ने दो घड़ियां बख्शियां ने इनू कि बस बहुत थोड़े चिर दा जिहड़ा है तो वो प्राहुणा है, ते पर इस दे काम धंधे जिहड़े नजिठण वाला वो बन जांदा। भाव ये फिर इत्थे आके आया ते है कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए देरी बरिया, कि काम तां ये सवारना सी पर ये होर धंधियां दे विच ही पै गया, होर काम ही जिहड़े आके इत्थे करन लग पिया है। दो घड़ियां दा प्राहुणा माया काम व्याप्या समझै नाही गावार। कि ये हुण गवार भाव मूर्ख है जिहड़ा वो समझदा नहीं, जीवन दा सही रस्ता है जिहड़ा वो पछाणदा नहीं, समझदा नहीं, माया दे मोह विच ते काम वासना दे विच ही जिहड़ा वो फसिया रहिंदा है। भाव विकारां दे विच ही फसिया रहिंदा है। ये जिहड़े काम लई आया है वो काम पूरा नहीं करदा है। उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार। कि ये फिर भयानक जम दे वस जिहड़ा है वो पै गया है।
क्योंकि हुण जे गलत काम करेगा तो फिर उहदी सज़ा तो इहनूं मिलनी है। इस करके पातशाह जी आख रहे हैं कि फिर जदों इत्थों उठ के तुर पैंदा है तो पछताउंदा है कि उस वेले फिर पछताया कुछ नहीं बनता, जमां दे जदों वस मनुख जिहड़ा वो पै जांदा है। अंधे तू बैठा कंधी पाहे, जे होवी पूरब लिखिया तां गुर का बचन कमाहे। रहाओ पातशाह जी हुण इत्थे फिर उदाहरण नाल समझा रहे हैं। अंधे तू बैठा कंधी पाहे, कि जिवें एक दरख्त है वो नदी के कंढे ते उगया होवे ना, वो भावें जिन्ना मर्जी मान कर ले अपने आप ते कि मैं बड़ा मजबूत हाँ, मेरियां जड़ां बड़ियां मजबूत ने, मैनूं फल बड़े मिठे लगदे, मेरी छां बड़ी संघनी है, मेरा तना बहुत मोटा है, मैं बहुत मजबूत है। पर नदी ते कंढे ते उगया रुख भावें जिन्ना मर्जी मान कर ले, वो पता नहीं कदों वो घड़ी आ जानी है कि उहदियां जड़ां दे विचों दी पानी जिहड़ा होके गुजरदा ते उहने उस नदी दे विच ही जिहड़ा समा जाना, डिग जाना। भाव कंढे ते उगे रुख दी कोई जिहड़ी है वो लम्मी आरजा नहीं है, लम्मी उम्र नहीं है, पता नहीं कदों उन्हें डिग जाना है। इस तरह पातशाह जी आखदे हन कि मनुखा तू भी बिल्कुल किनारे ते बैठा होया है, कि मूर्ख है तू, कि हे माया दे मोह विच अन्ने होए जीव, जिवें कोई रुख नदी के कंढे उत्ते लग्या होया होवे ना, ते पता नहीं कदों ढाह लग के वो विच डिग पए, तिवें तू भी मौत रूप नदी के कंधे उत्ते बैठा होया है, मौत की नदी ते बैठा होया है। पता नहीं किहड़े वेले तेरी मौत आ जाए, पता नहीं कदों तेरे सवास जिहड़े वो मुक जाण। इस करके पातशाह जी आखन लगे, जे होवी पूर्व लिखिया तां गुर का बचन कमाहे, कि जे तेरे धुर दे विच तेरे लेख जिहड़े ने वो पहले कीते लेखां दे करके कीती कमाई दा चंगा लेख लिखिया होवे तां गुरु दा उपदेश कमा ले। भाव गुरु दे नाल जुड़ना कर, गुरु दे उपदेश अपना जीवन बनाए ते आत्मिक नौत तो बच जाएगा। गल है कि समझण दी कि सारे बैठे नदी दे कंढे ते ने, पर एक हुण विकारां करके हंकार कर रहा है, दूजा जिहड़ा उसनूं याद रख के मालक दा शुक्र कर रहा कि ये भी सवास आ रहा तेरा ही है, तेरे भाणे च बीत जाए, गुरु दे बचन अनुसारी है। ते दूजा जिहड़ा है वो हंकारी रूप, कहण दा भाव गुरमुख ते मनमुख, कि फिर मनमुख है वो अंत वेले पछताउंदा जरूर है कि चंगा हुंदा जे मैं आ कर लैंदा, चंगा हुंदा जे मैं ओ काम माड़ा काम ना करदा। पर जिहड़ा गुरमुख हुंदा है वो हर वेले हर समय उहदे शुकराने दे विच अपना जीवन बतीत करदा है। हरी नाही नह डडोरी पक्की वड्डन हार, लै लै दात बहुतिया लावे कर तैयार, जा हुआ हुक्म किरसान दा तां लुण मिनिया खेतार, इस करके आप पूरा शब्द उच्चारण किया है क्योंकि इस पूरे के अनुसार ही अर्थ होने। सतगुरु जी आखन लग गए ने कि जिवें कोई किसान हुंदा है ना, वो अपने खेत का मालक आप हुंदा है कि वो जदों मर्जी अपनी फसल नूं वढ ले, हरी नाही ना डडूरी, कि किसान की मर्जी है कि वो हरी वढनी चाहे, वो डडूरी तो भाव की हुंदा कि जिहड़ी ना पक्की ना कच्ची, कोई डडरू जी है ना पक्की है ना कच्ची, अध विचाले जी है कि जिवें कहदी फसल नूं दाने पए होण ते दुद्धे जे होवे, ना पक्के होण ना कच्चे होण। पक्की वढनहार
कि भावें वो पक्की वढ़ ले, भावें वो डडरी वढ़ ले, अध पक्की वढ़ ले ते भावें वो कच्ची वढ़ ले, क्योंकि मालक है, मालक अपना अपना खेत जो मर्जी वड्डे। पातशाह जी आखेंगे लै ले दात बहुत आ कि किसान अपना खेत वड्डण दे लई जो मर्जी आ जा सकता है, वो दात लिया के भाव की लावे कि वो दातर लैके आ जाते हैं कि जो मर्जी वो अपनी फसल वढ़ लैन। इसे करके हुण पातशाह जी आखदे ने कि जदों फिर किसान दा हुक्म हुंदा है तां लुण, लुण तो भाव कट क्या कटता मिणिया खेतार, भाव कट के खेत नूं मिण दिता जाता है, साफ कर दिता जाता है, कट वढ़ दिता जाता। इसे तरह असीं भी उस मालक दी फसल है। हरी भाव बहुत छोटी उम्र वाले कि बचपन च ही है जी, डडोरी भाव जवानी च, ना वो बुढ़े है ते ना वो भाव बच्चे है जवानी च ने, ते पक्की पक्की तो भाव जिहड़े बजुर्ग हो गए बुढ़ेपे चले गए। ये फसल है उस मालक दी। फिर सतगुरु जी आखन लगे कि फिर वो पता नहीं कदों दात लैके अपने सेवकां नूं भेजदे कि जाओ वढ़ लिओ, वेखना थोड़ा उन्हें। जदों हुक्म हो गया उस मालक दा उदों वड्डी जानी, भावें कोई बच्चा है, भावें कोई जवानी च, भावें कोई बजुर्ग है। ते जां हुआ हुक्म किसान दा, जदों उस मालक दा हुक्म हुंदा है तां फिर वो ये नहीं देखदे कि हजे जन्म कल ही होया है जां हजे साल दा ही होया है, बोलण भी लगा, खाण पीण नहीं लगा, जां हजे जवानी दे विच ही है, अजे विआह होना जां हो के ही हटिया है, जां अजे बहुत कहण दा भाव कि समय दे विच काम कर रहा, जिम्मेवारियां ज़्यादियां ने, वो भी नहीं देखदा, जां बजुर्ग हो गया वो भी नहीं देखदा कि इन्हें नाम जपिया कि नहीं जपिया। बस जदों हुक्म हो गया उदों आके मिण दिता जाता है, भाव कि वो मालक कदे भी जिहड़ा है ये नहीं देखदा, जिवें हुक्म हुंदा है उवें ही जिहड़ा है जीव इत्थों तुरदा है। पहला पहर धंधे गया, दूजे भर सोया, इत्थे हुण जीवन नूं चार पैरां दे विच सतगुरु जी वंड रहे हैं कि चार जिहड़ियां चार पार्ट कर रहे हैं कि हे माया च ग्रसे मूर्ख मनुख दी जिहड़ी जीवन है ना, जिहड़ा जीवन है, जीवन रात है, पहला पैर दुनिया दे धंधियां च बीत जाता है, भाव कि दुनिया दे धंधे करदियां होइयां 25 साल की उम्र के दुनिया धंधियां दे विच पैंदा है, समझ लैंदा है। फिर दूजे पैर भर सोया कि फिर मोह की नींद विच फिर इहदा दुनिया दे नाल उत्थे मोह पै जांदा है, समझदा है हर एक चीज़ नूं, अपना लाभ हानि सोचण लग जांदा है, अपने परिवार दी नूं चंगी तरह जिहड़ी समझ आ जांदी है। हुण 25 तो लैके इंज कह लईए 50 साल तक चंगी तरह हुंदा है कि हुण कमाउणा भी खाना भी है, हर एक तरीके की जिहड़ी वो समझ पै जांदी कि मोह की नींद विच फिर ये रज के सौंदा है, भाव इनू मोह हुंदा है कि मैं कमा लवां, भाव विकार कमाउंदा है। तीजे झाख चखाया, चौथे भोर पया, कद ही चित न आयो, जिन जियो पिंड दिया। तीजे पैर विच भाव फिर 50 तो जो टप पैंदा 75 तक की गल सतगुरु जी गल कि जे वो मनुख की उम्र 100 साल है, आखन लगे फिर उत्थे ये फिर विषय जिहड़े भोगदा रहिंदा है। ते चौथे पैर विच आखर नूं जिहड़ा वो दिन चढ़ पैंदा है कि जीवन एक रात की तरह है, 4 ही पैर हुंदे आ रात दे, इस करके दिन चढ़ पैना तो भाव कि ये बुढ़ेपा जिहड़ा आ जांदा है, भाव मौत जिहड़ी है वो दरवाजे ते आ जाती, कूकदी है फिर कि अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बुढ़ेपा आ गया। कहण तो भाव कि 4 पार्ट्स दे विच 4 पैरां दे विच सतगुरु जी ने इत्थे जिहड़ा आख्या है कि मनुखा तेरा जीवन आ ही है, आ भी टप गया, दूजा भी टप गया, तीजा चौथा तू टपना है ही नहीं क्योंकि है ही लास्ट। उस तो बाद दिन चढ़ जाता है, भाव कि जिहड़ा है ये पूरा हो जाता है। सतगुरु जी फिर कद ही चित न आयो,
जिन जियो पिंड दिया। आखन लगे जिस प्रभु ने इस नूं जिंद अते शरीर दिता है वो कदे भी इस दे चित्त विच नहीं आउंदा, भाव उस नूं कदे ये याद ही नहीं करता कि जिन्ने सारा कुछ दिता है, शरीर भी देता, जिंद भी देती, होर वरतन लई जिहड़ियां दातां पदार्थ भी देते, उन्होंने याद ही नहीं करता, शुकराना उहदा करदा ही नहीं है। साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान, जिसते सूझी मन पई मिलिया पुरख सुजान। नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। पातशाह जी आखन लगे हे नानक आख साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान, की मैं साध संगत तो सदके जाना हाँ, साध संगत तो अपनी जिंद कुर्बान करता हाँ, क्योंकि जिसते सोझी मन पई मिलिया पुरख सजान। क्यों? क्योंकि साध संगत तो ही मन विच प्रभु दे सिमरन दी सूझ पैदा होंदी, समझ पैदा होंदी है। साध संगत दी राही ही सब दे दिलां दी जानन वाला अकाल पुरख जिहड़ा है वो मिलदा है। सतगुरु जी अखीर ते आखदे नानक डिठा सदा नाल हर अंतरजामी जान, कि अंतरजामी सुजान प्रभु नूं साध संगत दी कृपा नाल ही मैं सदा अपने अंग संग वेख्या है, अंग संग जानदा हां। श्री राग महला पंजवा सबे गल्लां विसरन इको विसर न जाओ। धंधा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ। सतगुरु पातशाह जी आखन लगे कि मेरी तां सदा यही अरदास है कि हे मालिक तेरे चरनां च यही मेरी बेनती है कि होर सारियां गल्लां बेशक भुल जान, सभे गल्लां विसरन, कि सारियां गल्लां ही भावें भुल जान पर एक परमात्मा दा नाम मैनूं कदे ना भुले, कदे ना मेरे चित्त विचों ये विसरे, इको विसर ना जाओ। धंधा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ, कि पातशाह जी कि गुरु ने दुनिया के धंधियां दा मेरा सारा मोह साड़ के मैनू प्रभु का नाम जिहड़ा है वो दिता है। उस प्रभु दे नाम नाल मेरी सांझ है जिहड़ी वो पा दिती है। आसा सबे ला कै एका आस कमाओ, जिने सतगुर सेविया तिन अगे मिलिया थाओ। इस करके पातशाह जी आखन लगे कि ये सदा थिर नाम सच्चा नाम ही हुण मेरा जीवन मनोरथ है। मैं दुनिया दीयां सारियां आसां जिहड़ियां ने मन विचों दूर करके एक परमात्मा दी आस अपने अंदर जिहड़ी वो पक्की करदा हां, भाव इनू दरड़ाउंदा हां, हिरदे दे विच पूर्ण तौर ते धारण करदा हां। जिन्नी सतगुर सेविया तिन अगे मिलिया थाओ, कि जिन्हां बंदियां ने जिन्हां मनुखां ने सतगुरु दा आसरा लिया है उन्हां नूं उस मालिक दे घर विच आदर मिलदा है, सत्कार जिहड़ा है मिलदा है, भाव थां मिलदा है। मन मेरे करते नो साला सबे छड़ सियानपा गुर की पैरी पा रहाओ। कि हे मेरे मन
करतार दी सिफत सलाह कर। उस मालिक दी हमेशा जिहड़ी है करते नूं सलाह, करते तो करता मालिक परमेश्वर की हमेशा उहदी सिफत सलाह करनी कर। सभे छड्ड सियाणपां, सारियां सियाणपां छड्ड दे, सारियां चतुराइयां छड्ड दे अते छड्ड के गुरु दे चरनां ते ढह पै। गुरु दे चरनां च पै जा, क्योंकि सिफत सलाह दी दात गुरु दे कोलों मिलदी है। गुरु ही जिहड़ा है वो रस्ता पा सकदा है। दुख भुख नहा व्यापई, जे सुख दाता मन होए। कितहे काम न छिजिए, जा हिरदय सच्चा सोए। सतगुरु पातशाह जी आखले हन कि जेकर वो मालिक है जिहड़ा वो हिरदे विच वस पए, जे सुख दाता मन होए, सुखां दी दात देण वाला मालिक मन होए, मन दे विच वस जाए, मन दे विच प्रगट हो जाए, ते ना फिर दुनिया दे दुख जिहड़े वो जोर पा सकदे ने। दुख भुख कि ना तां फिर दुनिया दे ये जिहड़े दुख ने वो जोर पा सकदे हन। भुख भाव भोजन खाण वाली भुख नहीं, माया दी भुख, तृष्णा है जिहड़ी कि ना माया दी तृष्णा फिर जिहड़ी वो जोर पा सकदी है। वो भी फिर अपना जोर नहीं पाउंदी, क्योंकि उस दे मन विच वसन दे नाल जीवन दे विच सबर ते संतोख जिहड़ा है वो आ जांदा, पैदा हो जांदा है। इस करके पातशाह जी फिर आखदे हन कित ही काम न छिजिए, जां हिरदै सच्चा सोए। कि जदों हिरदे विच वो सदा थिर रहन वाला परमात्मा वसदा होवे तां किसे काम विच लगे आत्मक जीवन कमजोर नहीं हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ नहीं सतगुरु जी इत्थे आख रहे कि कोई काम नहीं करना। कहन तो भावे जदों वो वस पैंदा है फिर सारे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ कोई अपनी किरतकार करता है, भावें कोई जॉब करता है, भावें कोई किसी अहुदे ते है, फिर वो उस अहुदे नूं गुरु दे शब्द राही जिहड़ा है वो चलाउंदा है। गुरु दे शब्द राही उपदेश के अनुसार ही फिर जीवन बतीत करता है। भावें वो नौकरी करता होए, भावें वो कोई दुकान आदि व्यापार करता होए, ते भावें वो किसी अहुदे ते होए, फिर उन्होंने सबना दे विचों मालिक दी जोत नज़र आउंदी है। फिर वो किरत है, वो किरत सच्ची सुच्ची बन जाती है, वो फिर किरत नाल निभण वाली बन जाती है, फिर वो किरत जिहड़ी वो सफली हो जाती है। इस करके सतगुरु जी आख रहे हन जिस तू रखे हाथ दे, तिस मार न सकै कोई। सुखदाता गुर सेविए, सब अवगण कढै धोए। पातशाह जी आखन लगे कि हे प्रभु, जिस मनुख नूं तू अपना हथ दे के विकारां वल्लों बचाउंदा है ना, जिहदा सहारा तू बन जाना है, जिस तू रखे हथ दे कि कोई विकार फिर उसनूं आत्मक मौते मार नहीं सकता है। हुण इत्थे ये नहीं कि कोई उन्होंने मार नहीं सकता कि वो सरीरक तौर पर खत्म नहीं होगा। शरीर सब दा बिनसना है, पर अंदर दी मौत नहीं होंदी। हमेशा ही जिहड़ा आत्मक जीवन है उदा वो बनिया रहिंदा है। भाव कोई विकार है जिहड़ा उहदी आत्मक मौत नूं नेड़े नहीं आउण दा, भाव आत्मक मौते नहीं मारदा है, क्योंकि वो उस मालिक दा सहारा, जदों उस मालिक दे सहारे दा आसरा उसनूं प्राप्त हो जाता है। सुखदाता गुर सेवी है, सब अवगुण कढै धोए। पातशाह जी आखन लगे कि हे भाई, आत्मक आनंद देन वाले सतगुरु की शरण लैनी चाहिए है। सतगुरु मन विचों सारे औगण धो के कढ दिंदा है, खत्म कर दिंदा है, औगणा दे नाश कर दिंदा है। सेवा मंगै सेवको, लाइयां अपनी सेव।
साधु संग मशक्कते तुठै पावां देव। पातशाह जी आखन लगे, हे प्रकाश रूप, प्रकाश रूप अकाल पुरख मालिक जी, प्रभु मैं सेवक तेरे पासों उन्हां जीव इस्त्रियां दी सेवा दा दान मंगदा है जिन्हां नूं तू अपनी सेवा विच लाया होया है। सेवा मंगै सेवको लाइयां अपनी सेव, कि मैं तेरा सेवक बन के उन्हां दी दात मंगदा हाँ जिहड़े तेरे चरनां नाल पहलां जुड़े होए ने। उन्हां दी सेवा दा दान मैं मंगदा हाँ। अते साधु संग मशक्कते तुठै पावां देव। अते हे प्रभु जे तू मेहर करें तां मैनूं साध संगत दी प्राप्ति होवे ते सेवा दी दात मिले। भाव सेवा करन दा ढंग है वो भी गुरु दसदा है। कई बार असीं अणजाणे दे विच अजिही कारज अजिही कोई सेवा करते हैं जिस नूं असीं गुरु दा जां धर्म दा नाम दे के करते हैं। कई बार उहदी दिशा ठीक नहीं हुंदी। वो भावें असीं जिवें मर्जी गल ला लईए, भावें लंगरां दी गल ही अजकल ला लईए कि भावें लंगर है जिहड़ा वो धन गुरु नानक साहब जी ने सानूं बख्शिया है, पर रजियां नूं रजाउण वास्ते नहीं बख्शिया, भुखियां नूं छकाउण वास्ते है। असीं कला दाल फुलके ते जोर दे लिया, पर गुरु नानक साहब जी ने जदों लंगर लगाया सी ना, नाल उन्हां ने वस्त्र भी दिते सी, नाल उन्हां ने होर जरूरी वस्तां भी दित्तियां सन। जे भोजन खाण नूं दित्ता सी नाल होर भी दित्ता सी। असीं सारा कुछ भुल गए, असीं सिर्फ खाण वाले लंगर ते जोर देता है बस कि छका दईए। पर असल दे विच विद्या दा लंगर भी गुरु नानक साहब जी ने दिता है कि बाद दे विच देखो गुरु अंगद साहब पातशाह जी गुरमुखी किवें पढ़ाउंदे ने, वो भी ते लंगर है। भोजन की गल है, जिथे लोड़वंद है लोड़ है उत्थे भोजन भी छकाया जाता है। इस करके गरीब दा मुंह गुरु दी गोलक है, ना कि गुरु की गोलक गरीब दा मुंह है, क्योंकि दोवां शब्दां दी हेर फेर करन दे नाल अर्थ बदल जाते हैं। खैर सतगुरु जी रहमत करन कि लोड़वंद दी सेवा करनी, लोड़वंद दी पूर्ति करनी सब तो वड्डा लंगर है, यही सब तो वड्डा दान है। खैर अपना आपां विषय दे विच रहीए। पातशाह जी आखणगे कि गुरु दे कोलों ही सेवा दी दात मिलदी है, साध संगत दे विचों ही आके जिहड़ी ये प्राप्ति हुंदी है। सब किछ वसगत साहिब आपे करन करेव, सतगुर कै बलिहारणै मनसा सब पूरेव। पातशाह जी आखन लगे सब किछ वसगत साहिब है कि हरेक जीव भाव है भाई हरेक दात मालिक दे अपने वस विच है, उहदे इख्तियार दे विच है, उहदे हुक्म विच है। वो आप ही सब कुछ करन कराउण वाला है, आप ही सब कुछ वो करदा है। सतगुर कै बलिहारन मनसा सब पुरेव कि मैं अपने सतगुरु तो सदके जाना, बलिहार जाना, कुर्बान जाना हाँ। सतगुरु मेरियां सारियां लोड़ां जिहड़ियां वो पूरियां करन वाला है, क्योंकि उहदे कोल ये ताकत है, ये समर्था है, उहदे कोल ये इख्तियार जिहड़ा वो है। पुरेव तो भाव है पूरियां करदा है। इको दिसै सज्जणो इको पाई मीत, एक सै दी सामग्री एक सै दी है रीत। सतगुरु पातशाह जी आखन लगे इको दिसै सज्जनो इको भाई मीत कि हे भाई जगत विच एक परमात्मा ही असल सज्जन है। सज्जन साथी दिसदा है, उही एक असली भरा है कि जिहड़ा हर समय तेरे नाल निभदा है, हर समय तेरी सहायता कर सकता है, ते ओही जिहड़ा है असली मित्र है। सब कुछ भाव ओही है
इको भाई मीत इकसै दी सामग्री इकसै दी है रीत, कि दुनिया का सारा धन पदार्थ उस एक परमात्मा का ही दिता होया है, सब कुछ उहदा ही पैदा किया होया। कीता पसाओ इको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ, कि उहदे एक हुक्म दे नाल ही सारा कुछ पैदा होया ते है भी उहदा ही है। वो जे एक हुक्म दे नाल पैदा कर सकता है ते एक हुक्म दे नाल वो खत्म भी कर सकता है, नाश भी कर सकता है। इस करके उसे दी मर्यादा जिहड़ी जगत विच चल रही है, भाव इकसै दी है रीत, ओदी रीत ओदी मर्यादा है जिहड़ी इस संसार दे विच चल रही, कि जीव आ रहे ने जीव जा रहे ने, समग्री जिहड़ी है एक पासे खत्म हुंदी जा रही, दूजे पासे नवीं उत्पन्न हुंदी जा रही है। एक सस्यों मन मानिया ता हुआ निहचल चीत, सच खाना सच पहनना टेक नानक सच कीत। पातशाह जी आखन लगे, हे नानक, जदों मनुख दा मन एक परमात्मा दी याद विच गिज जांदा है, जदों आदत बन जाती है उस दे नाम दी, उहदे नाम नाल जुड़े रहन दी, एक स्यों मन मानिया, जदों मन मन जाता है कि हुण नाम दे आसरे नाल ही मैं विकारां तो बच सकदा हां, तां होआ निहचल चीतां, तदों उसदा चित्त माया वाले पासे डोलणों हट जाता है। उन्होंने पता लग जाता है कि विकार कमाउण नाल जीवन खराब हुंदा है। सच खाना सच पहनना टेक नानक सच कीत, तां ओ फिर परमात्मा दे सच्चे नाम नूं ही अपनी आत्मा दी खुराक बना लैंदा है, ते नाम नूं ही अपनी आत्मक पोशाक जिहड़ी है बना लैंदा है, ते सच्चे नाम नूं ही अपना आसरा जिहड़ा है वो बना लैंदा है। भाव नाम ही जिहड़ा है वही टेक है, नाम ही जिहड़ा है आत्मा दी खुराक है, नाम ही जिहड़ी है आत्मा दी पोशाक है। सतगुरु जी रहमत करन। 75 शब्दां दी विचार है जिहड़ी आपां संपूर्ण कीती है। सतगुरु जी रहमत करन। फतेह प्रवान गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।